Guys, welcome back to our channel Fantastic Physics. So my name is Prashant Kohar, and in this video we will discuss about the next topic after the definition of friction. So in this video we will discuss about types of friction and magnitude of static and kinetic friction. Hopefully you will gonna enjoy it, and after that we will cover the next part of friction topic. Thank you. Love you. Types of forces. Friction forces. Types of. So next topic is types of friction forces. First is kinetic friction. And second is static friction. And we can have the idea by the name itself, kinetic friction and static friction. So kinetic friction is this is that kind of friction which you can observe or you can see during a motion, and this is called static friction. जब दो बॉडीज दो सरफेस आपस में रिलेटिव आपस में क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं. ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज बी देयर बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस, बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन. ओके, अब एग्जैक्टली काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, वी विल डिस्कस अबाउट दिस. ओके, सो kinetic friction. Okay, so definition क्या है? What is the definition of kinetic friction? So kinetic friction will always be there because of the relative motion between the two surfaces. If there is no relative motion, then this friction force will be absent. अगर दो सरफेस की रिलेटिव मोशन है, only then we can talk about this kinetic friction. Okay, for example, let's say this body or object A is at rest on a surface S. Okay, अब u is equal to 0. Let's say velocity of this object is 0 and surface is also at 0 velocity. The velocity of surface is also 0. Now we can see there is no relative motion between the two surfaces, so that's why kinetic friction will be 0. Okay, so let's discuss about what is the magnitude of kinetic friction. इसकी exactly value होती है, and there is a term called mu, which is called coefficient of friction. ठीक है, it's a dimensionless quantity. Okay, so basically ये हम किस लिए यूज़ करते हैं mu? To define the friction between two surfaces. If let's say mu is 0, then this surface is called frictionless surface. But practically ऐसा कोई surface है नहीं जिसमें इसका mu 0 हो. But many times in during the many questions we can consider frictionless surface. So at that time the value mu will be 0. Okay. So exactly इसका magnitude क्या है, discuss करते हैं. Okay. सो जो भी मैं की पॉइंट्स बोल रहा हूँ यू कैन नोट डाउन, बिकॉज नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, बिकॉज जब लास्ट टाइम जब आप किसी एग्जाम के आप रिवीजन करोगे तो आपके नोट्स ही काम आएंगे. तो जो भी मैं कई बार हो सकता है मैं आई विल नॉट बी एबल टू राइट ऑल द पॉइंट्स ऑन द वाइट बोर्ड, सो यू कैन नोट डाउन. ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी अपोजिट टू रिलेटिव मोशन. कभी भी सेम डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगा. सो काइनेटिक फ्रिक्शन इट विल ऑलवेज बी अपोजिट टू रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज. ओके, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन? सो एफ के इज इक्वल टू म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन, वेयर एन इज नॉर्मल फोर्स बिटवीन द सरफेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मल फोर्स सिंपल सा फंड है. अगर आपको किसी दो सरफेस के बीच में इफ़ यू वांट टू फाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन, जस्ट फाइंड द
n, बिकॉज म्यू की वैल्यू तो आपको गिवन होगी या फिर आपको इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन होगी दैन यू कि आपको या तो म्यू निकालना होगा, उसमें आपको फ्रिक्शन फोर्स गिवन होगा या फिर आपको नॉर्मल फोर्स गिवन होगा। ओके, सो इन तीन क्वांटिटी में से एक दो आपको क्वांटिटी आपको मिलेगी। ओके, सो इफ़ यू कैन फाइंड n and if mu is given, then you can very easily find the kinetic friction. Okay, for example, let's say आपको let me explain by giving one very simple example. Okay, let's say there is a body. Okay, let's say there is object A and this is frictionless surface. Okay, अब ये कोई बॉडी B है। Okay, let's say the velocity of this body is equal to 10 meter per second and the velocity of A is equal to 20 meter per second. You can clearly see there will be a relative motion between A and B. Okay, अगर हम बात करें let's draw free body diagram of both object B and A. Okay, अब स्पीड A की ज़्यादा है, let's discuss about this. अब A की स्पीड ज़्यादा है तो A पे क्या होगा, फोर्स पीछे लगेगा बिकॉज ऑफ दिस, एंड B पे क्या है, फोर्स आगे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, एंड काइनेटिक फोर्स विल बी देयर. Okay, because of Newton's third law of motion, for every action there will be equal and opposite reaction. So अगर A के ऊपर फोर्स पीछे लग रहा है तो B पे आगे लगेगा. ओके, लेट्स से अगर ये दोनों बॉडी आपस में लेट्स से कंबाइंड वेलोसिटी दोनों की, लेट्स से कंबाइंड वेलोसिटी है दोनों की, लेट्स से 20. Now there is no relative motion between A and B, so because of that, so friction force will be 0. ओके, हाँ, अगर ग्राउंड में भी फ्रिक्शन है, लेट्स से यहाँ भी कुछ फ्रिक्शन है, यहाँ भी कुछ फ्रिक्शन है, सो अगर हम एक ही बात करें, लेट्स से अगर मैं लास्ट केस दोबारा ले रहा हूँ, वेट, लेट्स से अब ground surface, let's say this object is A, this object is B, it's moving with 10 meter per second, it's moving with 20 meter per second, mu is there. Okay, let's draw the free body diagram of A. I'm interested only for friction force, मैं अभी normal force इन सब की बात नहीं करूँगा. So because of B, friction force कैसे होगा, बी ए, बिकॉज ऑफ ग्राउंड फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड साइड होगा, जी ए. अगर हम बी की बात करें, बी पे क्या होगा, एफ ए बी, ये और कोई फोर्स नहीं होगा. ओके, लेट्स टेक वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ इंक्लाइन मोशन, बिकॉज इंक्लाइन क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं. Let's say there is this is fixed incline angle of theta, it's fixed, it's already defined. Let's say यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है A, now mu is there. Okay, wait, okay, let's assume that it's moving downward. For example, okay, let's say this whole system is at rest. Okay, ठीक है. अब हमें डिफाइन करना है, जो भी आपको कंडीशन दिख रही है, अब हमें डिफाइन करना है एग्जैक्टली फोर्सेस कैसे होंगे, न्यू एन की वैल्यू, नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट ए पार्ट. ओके, दिस इज ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन. इफ दिस इज एंगल थीटा, देन दिस एंगल also be theta. Let's draw perpendicular to this line, then this is 90 degree minus theta, and again this will be theta.
ओके, सो लेट्स से नॉर्मल फोर्स है ये एन. सो एन की वैल्यू कितनी आएगी? बिकॉज अगर आपको फ्रिक्शन फाइंड करना है देन एन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो अगर मैं बोलूँ रेस्ट पे है तो एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर होगा, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? जैसे एम जी है, एम जी का अगर हम कोस कॉम्पोनेंट देखेंगे तो इस टैक्स में आएगा जो कि एम जी कोस ऑफ थीटा. सो दिस कॉम्पोनेंट विल बी एम जी साइन थीटा. ओके, लेट्स अगर ये पूरा सिस्टम अगर सिस्टम अगर रेस्ट पे है, इट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स इट्स फ्रिक्शन फोर्स इज the mg sin theta force is balanced by friction force. It means F is equal to mg sin theta. अभी मैं काइनेटिक और उसकी बात नहीं, मैं अभी कुछ बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स एक्जैक्टली कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ऑल्दो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, बट अभी राइट नाउ आई एम गिविंग एग्जांपल सो दैट आप n की जो वैल्यू है अभी हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है कि n कैसे कैसे वेरी करता है. अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ n द फ्रिक्शन फोर्स विल बी डिफरेंट. सो F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा. F की वैल्यू क्या होगी? लेट्स से म्यू इंटू एन, एम जी साइन ऑफ थीटा. सो म्यू इंटू एन की वैल्यू क्या है? एम जी कॉस थीटा. एम जी कॉस ऑफ थीटा, एम जी साइन ऑफ थीटा, एम जी कैंसिल. सो म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, कई जगह पे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन, जनरल फ्रिक्शन. मैंने अभी स्टैटिक और काइनेटिक कंसिडर नहीं किया इस प्रॉब्लम के अंदर. ओके गाइस, सो आई थिंक आपको पार्ट 2 फ्रिक्शन का पार्ट 2 बड़ा अच्छा लगा होगा एंड जल्दी हम पार्ट 3 लेके आने वाले हैं. सो मैं ये छोटी छोटी वीडियो इसलिए मैं वो कर रहा हूँ बिकॉज सो दैट इनिशियली मैंने काफ़ी बड़ा टॉपिक एक साथ कवर किया था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड्स का मेरे पास फीडबैक आया था कि हर एक टॉपिक को मैं इंडिविजुअल कवर कर रहा हूँ मैं. ओके, सो दैट मैं भी आपसे कनेक्टेड हूँ और आप भी मुझसे कनेक्टेड रहें. एंड अगर आपको आपको अच्छा लगा यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड सर्कल ऑल्सो एंड यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड सर्कल एंड यू कैन टैप द बेल आइकन. ओके, एंड अगर आपको ज़्यादा कि आपको कोई स्पेशली किसी टॉपिक पे कोई डिस्कस करना है या कोई स्पेशली आपको वीडियो चाहिए देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. ओके, सो जल्दी मिलते हैं गाइज. लव यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल द सपोर्ट यू हैव गिवन मी. थैंक्स लॉट अगेन. लव यू, टेक केयर.